Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. So, in today's lecture, we are going to study about electric potential due to an electric dipole. Okay, so as we know that, then the electric dipole basically it is made up of two charges of same magnitude but opposite polarity. One charge should be of negative and the another charge should be of positive, and the distance between them should be very small. Then only we can say that it is a electric dipole. Okay, so now we are going to find out the electric potential at a nearby place, or we can say at a point in the space, uh, where we are going to find out the electric potential due to that electric dipole. So for that, we need two charges. Let us suppose that those two charges are plus q. Those two charges are plus q and minus q, and they are separated by a distance 2a. Okay, so if they are separated by a distance 2a, so we can draw them like this is minus charge and this is plus charge, and they are separated by a distance 2a. They are separated by a distance 2a, and there is a point o, there is a point o between, or we can say it is the midpoint of the line which is joining these 2 point charges plus q and minus q. And now we are going to find out the electric potential at a point p. Let us say that there is a point p in the space above as shown. So, and the distance of that point, the distance of that point is r distance from the origin. Okay, we are taking the midpoint as a origin, so the distance of the position of point p with respect to the origin is at r distance. ठीक है, तो जो माइनस चार्ज है, जो निगेटिव चार्ज है, उसका डिस्टेंस इससे हो जाएगा, लेट अस से इट इज r2, एंड जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अगर मैच करेंगे तो इट विल बी R1. ठीक, सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल एट पॉइंट P. And for that, as we know that the dipole electric dipole moment, that is electric dipole moment, that is P vector, it can be written as q into 2a into n cap, where n cap is the direction of electric dipole. इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है? एज वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑलवेज फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. जो लाइन उसको ज्वाइन करती है उसी के अलोंग उसका डायरेक्शन होता है. सो फॉर द गिवन डायपोल, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी, the direction of the electric dipole is from negative charge to positive charge as shown in the diagram. तो चलिए इसका एक सिस्टमेटिक डायग्राम बनाते हैं. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू रिक्वायर दीज टू डिस्टेंसेस R2 एंड R1. वो हमें पता नहीं है, तो वी नीड टू फाइंड आउट दैट. सो फॉर दैट पर्पस लेट अस अज्यूम दैट द एंगल मेड बाय दिस line joining the midpoint of the dipole to the point of interest, that is theta. मान लो कि ये एंगल थीटा है. तो अगर ये एंगल अगर थीटा है, तो अब हमें ये डिस्टेंस निकालने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, द डिस्टेंस R2 एंड डिस्टेंस R1. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जस्ट इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं और इस पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं. ठीक है, इफ वी if we draw a perpendicular line on this line, then we will get the distance. ये वाला जो इसके, मान लो कि हम अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये इसका एक पैरेलल लाइन बन जाता है. अगर ये पैरेलल लाइन है तो इसका डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगा, और हमें डिस्टेंस मिलेगा R2 इक्वल्स टू R प्लस ए cos थीटा. और सिमिलरली इस पे एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा फ्रॉम पॉइंट प्लस प्लस पॉजिटिव चार्ज, एंड उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1. अब ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा,
ये वाला डिस्टेंस, सो R1 विल बी R माइनस ए कोस थीटा। ओके, तो इस तरीके से हम इसको डेराइव करेंगे कि द व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एंड फॉर दैट वी रिक्वायर अ सिस्टमैटिक डायग्राम। सो लेट अस सी दैट व्हाट कैन बी दैट डायग्राम। Okay, I hope you are all able to see the diagram in which we have drawn here that the negative charge is here, positive charge is here placed here, and the distance between them is 2a, and the distance of negative charge from the origin is a, and similarly the distance of positive charge from origin is also a, small a। हम लोग जो उनके बीच का डिस्टेंस है उसको a अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है, जो लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम पॉइंट ओ, ये वाला पॉइंट हम इसको ओ बोल रहे हैं, दिस पॉइंट इज ओ। द द लाइन ज्वाइनिंग points O and P. P is the point of interest at which we want to find out the electric potential। और उस जो लाइन है ये इस बोल सकते हैं कि द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू उसके साथ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो अगर ये थीटा एंगल बना रही है, अगर हम इसको जो लाइन ओपी है उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। क्रॉस क्रॉस जब बनता है तो उसके जो एंगल्स होते हैं, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं। नाउ इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम माइनस चार्ज टू दिस ऑन दिस लाइन, देन ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, एंड we are going to find out this distance। let us say that इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं A, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं B। तो मुझे यहाँ पे जो ए ओ है, द डिस्टेंस ए ओ, दैट वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। अब ये वाला जो ट्राइंगल है अपने पास माइनस क्यू चार्ज से लेके पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक का, तो वहां से अगर हम कोस थीटा निकालेंगे फॉर लोअर ट्राइंगल, ठीक है, कोस थीटा विल बी बेस अपॉन द हाइपोटेन्यूज। तो बेस, व्हाट इज द बेस हियर, इट इज ए ओ, एंड व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, इट इज ए। तो डिस्टेंस ए ओ कितना हो जाएगा, ए ओ विल बी ए टाइम्स कोस थीटा। सिमिलरली हमें इसका जो आर टू डिस्टेंस का तो काम हो गया, क्योंकि इससे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया और इसका इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा। अब डिस्टेंस आर वन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज वी हैव टू पुट अ परपेंडिकुलर ऑन दी द लाइन ओपी, ठीक है। ओपी पे हमने जैसे परपेंडिकुलर डाला, तो अगेन इट क्रिएटेड अ ट्राइंगल हियर, एंड यहां पर फ्रॉम अपर ट्राइंगल, अपर ट्राइंगल, हमें क्या मिल गया यहाँ पे, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन, बेस कितना है यहाँ पे, ओ बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज अगेन ए, ठीक है। लेट अस से अपने जो चार्जेस हैं, ठीक है, वो चार्जेस दो पॉइंट्स पे रखे गए हैं, आर एंड एस, आर एंड एस। तो जो कोस थीटा आया है, कोस थीटा इज ओ बी अपॉन ए, एंड ओ बी विल बी a cos theta। OB is a cos theta। So that is how we can find out this distance। This distance will be OA is also a cos theta and OB is also a cos theta। क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ेगी to find out the distances R2 and R1, which are the distances of the two charges, negative charge and positive charge, from the point of interest। उससे हमें दो डिस्टेंस मिल गई है। अब यहां से अगर मैं अब डिस्टेंस की बात करूं R2 फ्रॉम द डायग्राम
what is R2 here? What is R2? क्योंकि ये देखो, आप यहाँ से पैरेलल डिस्टेंस बनाओ, ये पूरा का पूरा पैरेलल पोर्शन चलेगा, तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा। तो द डिस्टेंस विल बी R प्लस a cos थीटा। इट विल बी R प्लस a cos थीटा, एंड R2, अगर इनको वर्ड्स में लिखना है आपको, तो आप लिख सकते हैं OP प्लस OA। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं AO प्लस OP इक्विवेलेंट टू R माइनस A cos थीटा। क्योंकि जो R1 है दैट इज इक्वल टू दिस BP ओनली। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा? और इसके इक्विवेलेंट लिखना चाहें तो आप AP लिख सकते हैं, और दिस R2 विल बी इक्वल टू BP, which is OP minus, which is OP minus, which is OP minus OB। ठीक है, so that is how we find out that what is R2 and R1 here। और अब हम आसानी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। द नेट पोटेंशियल, द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। So the net the electric potential due to the given dipole, due to the given dipole, what will be the electric potential? It will be V equals to V due to positive charge, the potential due to positive charge plus the potential due to negative charge. Now, as we know that the electric potential due to a point charge is nothing but it is kq upon r, where k is the electrostatic potential. So positive charge it is kq by r1, plus for negative charge it is minus q upon r2। From the above given electric dipole arrangement we can see यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस है R2 और पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस है R1 फ्रॉम द पॉइंट P। ओके, एंड where k equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, 1 upon 4 pi epsilon naught is the expression for k। Now we will get the equation as V equals to, this kq can be taken out and we will get 1 upon r1 minus 1 upon r2। Now we will place the equations of r1 and r2 in the equation and we will get V equals to kq times 1 upon r1 is r minus a cos theta, and minus 1 upon what was r2, it was r plus a cos theta, r plus a cos theta। Now when we take the LCM, तो इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा आपका r माइनस a cos थीटा इंटू r प्लस a cos थीटा।
क्योंकि इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो दैट इज वाई वी हैव टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स। एंड ये वाला डिनोमिनेटर का पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा और ये डिनोमिनेटर का पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो वी विल गेट आर प्लस ए कोस थीटा, आर प्लस ए कोस थीटा माइनस ये वाला उससे मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्टली इट विल बिकम आर माइनस ए कोस थीटा। ओके, नाउ अपने पास नेक्स्ट इक्वेशन होगा के क्यू इंटू आर प्लस ए कोस थीटा माइनस आर प्लस ए कोस थीटा, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो द फर्स्ट टर्म विल बी ऑन नेगेटिव, और नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। And from the below part, we can see that it is r minus a cos theta, and the next term is r plus a cos theta. So it is simply x minus y into x plus y. So it will give us r square minus a square cos square theta. R square minus a square into cos square theta. और नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा v इक्वल्स टू के क्यू into r and minus r will be cancelled out, और a cos theta plus a cos theta ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा 2a cos theta, और r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन हमें मिलेगा। अब यहां से एक इक्वेशन हम बनाने की कोशिश करते हैं। v will be equals to k into q into 2a, q into 2a कर सकते हैं, दे आर ऑल इन मल्टीप्लीकेशन, cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर को यहां से अगर कॉमन लेता हूं तो आर स्क्वायर इट विल बी 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर cos square theta. Now as we know that the electric dipole moment is the magnitude p vector, the magnitude of p vector is p equals to q into 2a. So finally we will get the equations. Or one more thing here, as we know that the r is very greater than a, यहाँ पे जो हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और द मिड पॉइंट, और द डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डाइपोल, द पॉइंट इज वेरी फार एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, यानी कि उनके जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज वेरी स्मॉल as compared to the distance or we can say the point which we are taking, it is at very far point, it is at a very far distance, बहुत दूर डिस्टेंस पे हमने उस पर लिया है, तो as compared to the distance or the length, as compared to the length of the dipole, the point is taken very far, और उस वजह से हम कह सकते हैं कि द रेशो a by r का जो रेशियो है वो it is less than 1. So here the ratio of a by r is much less than 1, and that is why we can say that this term 1 minus a square upon r square, अगर a by r is very less as compared to 1, तो अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो it will become negligible as compared to 1. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ a अपॉन r का रेशियो है, अगर ये रेशियो मान लीजिए माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर की रेंज का आता है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये पिकोमीटर की रेंज का बन जाएगा, ठीक है, पिको की रेंज का बन जाएगा। तो पिको की रेंज का बनेगा तो 10⁻⁻12 हो जाएगा। तो एज कंपेयर टू 1, if I deduct 1 minus 10⁻⁻12, it will not make sense, it will be 1 only. So that is why we can write that 1 minus a square upon
आर स्क्वायर, और कोस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1। ठीक, तो इट विल नॉट अगेन मेक द दिस वैल्यू बिगर, it can be written as 1 only. So the above equation will become V equals to K into P cos theta upon R square into 1. And again, the equation will become as V of R. Yani ki the potential as a function of R will be equals to Kp cos theta upon R square. So this is the equation of electric potential due to the electric dipole, ठीक है। और here it is depending on two factors. It is depending on two factors. One is the angle made by the point of interest with the length of the dipole, plus एक other factor है, that is द डिस्टेंस आर फ्रॉम द लेंथ ऑफ द डाइपोल, उसके डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। और एक चीज आपने देखा होगा कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज फाइंड आउट किया था, तो व्हाट वाज दैट, वो हमें मिला था, इट वाज v इक्वल्स टू सिंपली के क्यू अपॉन आर। यानी कि for point charge, this is the case where V is inversely proportional to 1 by R. But for dipole, but for dipole, V is inversely proportional to 1 by R square. This is the major difference. Okay. और यहाँ पे अगर आप देखोगे वेक्टर फॉर्म में, अगर इसको लिखना चाहेंगे आप, तो इट कैन बी द P cos theta can be written as, the term P cos theta can be written as P vector dot R cap। P वेक्टर डॉट आर कैप, क्योंकि P वेक्टर है, यहां से देखो आप, P वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और जो R वेक्टर है, ये वाला जो R वेक्टर है, उसको अगर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल ही थीटा है, आप टेक्निकली देखेंगे तो इट विल बी सिंपली P cos थीटा इक्वल्स टू P वेक्टर डॉट आर कैप इज द यूनिट वेक्टर। और अगर इसको आप वैसे भी लिखना चाहें तो इट विल बी P, द मैग्नीट्यूड ऑफ P इंटू द मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप, और उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। इट इज सिंपली P cos theta only. तो इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बिकम एज के पी वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दो केसेस आप बना सकते हैं इफ यू वांट। केस वन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल का मतलब समझते हैं आप, इक्वेटोरियल मतलब व्हेन द थीटा इज 90 डिग्री। अगर हम अगर हम क्या करें, ये जो ये जो एंगल थीटा है, इफ इट इज 90 डिग्री, यहाँ पे डायरेक्ट परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है, तो उस केस में व्हाट विल बी द पोटेंशियल फ्रॉम द above equation, we can get the equation. So v equatorial will be equals to
kp cos 90 degree upon r square. And as we know that cos 90 degree is 0. So in the case of equatorial point, the electric potential is 0 at that point. अब दूसरा पॉइंट कहां पे हो सकता है? एक्सियल पॉइंट्स. For the equipotential, the electric potential due to a dipole at the axial points. Axial point होगा या तो एक्सिस के यानी कि जो ओरिजिन हमने लिया है उसके राइट साइड में हो सकता है, या फिर इसी लेंथ को अगर एक्सटेंड करें तो लेफ्ट साइड में हो सकता है. तो उस केस में क्या होगा, अगर वो पॉइंट राइट साइड में है यानी कि ऑन दिस एक्सिस ओनली, इफ द पॉइंट इज देयर, एक्चुअल पॉइंट अगर लेंगे तो इट विल मेक द एंगल थीटा 0. क्योंकि ये वाला जो एंगल है, जो हमने थीटा एंगल लिया है, वो उसी पे अलाइन कर जाएगा एंड इट विल बी थीटा इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो अगर हम केस टू की बात करें, केस केस टू, एक्सियल पॉइंट. एक्सियल पॉइंट में क्या होगा? थीटा कैन बी 0 डिग्री. राइट साइड में बनेगा जो पॉइंट, तो इट विल बी v इक्वल्स टू kp cos 0 डिग्री अपॉन r स्क्वायर. सो इट विल बी kp अपॉन r स्क्वायर. क्योंकि cos 0 क्या होता है? 1. cos 90 क्या होता है? 0. और दूसरा केस कब बनेगा? जब हम लेफ्ट साइड में फाइंड आउट करना चाहें इसके. इसके अगर लेफ्ट साइड में हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, एंड एट दैट पॉइंट इफ वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन द थीटा, ये वाला जो एंगल थीटा है वो यहाँ पे जाके अलाइन करेगा, तो इट विल बी 180 डिग्री. 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पे. तो थीटा विल बी 180 डिग्री एट दैट केस, एंड वी विल बी kp cos 180 degree upon r square, and the electric potential will become kp into -1, क्योंकि cos 180 क्या होता है? -1. And you will get the electric potential as minus kp r square. तो यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशंस बन जाती है फॉर इक्वेटोरियल directly the potential is 0. For axial points, for axial point, the v is plus minus kp upon r square. That means in the case of axial points, it depends on the position of the point at which we want to find out the electric potential. ठीक है. और अगर इसका हम ग्राफ बनाना चाहें, if we want to draw the graph between the electric potential and the distance r, so it will be v, since it is v proportional to 1 by r square, so the graph will look like इस पे हम ले लेंगे v ऑफ r और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करें हम. तो as we can see that when the distance r is 0 or nearly 0, तो potential क्या होगा? It will be infinity or nearly infinity. So uh, we will get a line which is coming from infinity. और uh, जब ये distance बहुत ज्यादा हो जाएगा तो then we can see that the potential will be nearly 0. तो उस केस में हमारे पास the graph, the line of the graph will be looking like it will be touching the horizontal axis. So it will look like
this type of graph you will see in case of electric potential due to an electric dipole. So I hope I have cleared all your doubts here, and we got the equation for the electric potential due to an electric dipole, जहाँ पे हमने दो केसेस की बात करी, एक इक्वेटोरियल प्लेन पे अगर कोई पॉइंट होता है, या फिर अगर दूसरा कोई एक्सियल प्लेन, जो एक्सियल प्लेन है उस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो उसमें कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और व्हाट आर द इक्वेशंस एंड हाउ दे डिपेंड ऑन द डिस्टेंस आर. Thank you so much for watching the video. If you like it, then like, comment, and share. Thank you so much.